Hello everyone. Today I'm going to start the next topic that is semi-solid dosage forms. That What are the semi-solid dosage forms? These are they are meant for external use only, and they are subcategorized into ointment, paste, jellies, suppositories, creams, gels, and all these are multiple dosage forms. Only suppositories are unit dosage form. Then next comes to these are the creams, ointment, jellies, paste. Pictures of cream, picture of ointment, jelly, cream and paste. Then ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैसे डिस्कस किया है what are ointment. That ointment are the semi solid preparations which are application on the skin or mucous membrane. तो mucous membrane हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था what is mucous membrane. तो the ointment are mainly used as a protective nature, and it also has emollient property. Then it may be defined as medicament dissolved or suspending और emulsifying in the ointment base. तो यहाँ पे जो हमारे important है वो है ointment bases. तो हम ointment bases पे discuss करते हैं what are the ointment bases. तो ointment bases जो हैं ये qualities हम लोग discuss कर चुके थे. एक बार मैं दोबारा से इसको बता देती हूँ that ointment base की जो qualities हैं that should be inert, odorless, colorless and smooth. It should be physically or chemically stable. It should be compatible with skin and with even अगर आप उसके साथ medicament add कर रहे हैं तो that should be non-reactive या compatible with all medicaments. It should be such consistency कि that should be spread easily and soft as much as soften to apply the skin with stress कि हम लोगों को ज़्यादा pressure के साथ उसको apply ना करना पड़े. Then it should not retard healing wound. जो हमारी ointment की जो category जो property है कि वो wound को heal करता है तो उस property को भी वो retard ना करे. और lastly but important, that should be non-irritating or non-sensitizing to the skin. The classification of bases are oleogenous bases, absorption bases, emulsion bases and water soluble bases. First one is oleogenous base. Example of oleogenous base are mainly consist of water soluble hydrocarbons, vegetable oils, animal fat and waxes. Then hydrocarbon bases are soft paraffin, hard paraffin and liquid paraffin. Mainly vegetable oils are mainly used in ointment to lower the melting point और टू सॉफ्टनिंग द बेसिस. अगर आपने सारी चीजें जैसे ये सपोज आपने हार्ड पैराफिन ऐड कर दिया है तो और हार्ड पैराफिन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसको आपको मेल्ट करना पड़ेगा. तो उसमें हम सॉफ्ट पैराफिन या लिक्विड पैराफिन या वेजिटेबल ऑयल को इस कंसिस्टेंसी में ऐड करते हैं कि वो बॉडी टेम्परेचर पे स्लाइटली मेल्ट हो जाए और दैट शुड बी इजीली एप्लीकेबल या अप्लाई किया जा सके स्किन के ऊपर. तो उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए या उसकी विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसमें इनका रेशियो सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन एंड वेजिटेबल ऑयल उसकी सॉफ्टनिंग को, कंसिस्टेंसी या विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए इन चीजों को पर्टिकुलर प्रोपोर्शंस में ऐड करते हैं. These bases serve to keep the medicament in prolonged contact with the skin and also act as a occlusive dressing. They have low capacity to absorb water and are used chiefly for their emollient effect. These bases losing their importance nowadays for many reasons. For example, they are greasy, they are sticky and difficult to remove from the skin or cloths. It also retains body heat, which may produce an uncomfortable feeling of warmth. Do not help in the absorption of the medicament. तो ये कुछ इसके oleogenous base के कुछ disadvantages हैं जिसकी वजह से इनको preferably कम use किया जाता है nowadays.
Then next is absorption bases. These bases are generally hydrogenous substances which have the property of absorbing considerable quantities of water but still retaining their ointment like consistency. And there are two types of absorption bases. One is non-emulsified bases, and second one is water in oil bases. Non-emulsifying bases के examples हैं wool fat, wool alcohol, beeswax and cholesterol. Then वाटर इन ऑयल इमल्शंस के एग्जांपल हैं हाइड्रस वूल फैट, और उसको हम बोलते हैं लेनोलिन. देन नेक्स्ट कम्स टू इमल्शन बेसिस. इमल्शन के नाम हमने पहले इमल्शन पढ़ा है, तो इमल्शन बेसिस है तो ऑब्वियसली या तो हमारा इमल्शन बेस ऑयल इन वाटर रहेगा या हमारा वो इमल्शन वाटर इन ऑयल रहेगा. तो जैसा भी आपका मेडिकमेंट है, सपोज आपका मेडिकमेंट की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा अच्छी है तो वहां पे हम ऑयल इन वाटर वाला लेंगे, और अगर आपका मेडिकमेंट की सॉल्युबिलिटी जो है वो मतलब अच्छा मिक्स जो है वो वाटर ऑयल में होता है तो हम वहाँ पे वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बेस सेलेक्ट करते हैं. दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सा बेस चाहिए. तो दीज बेसिस आर सेमी सॉलिड और क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी. both oil in water and water in oil emulsions are used as a ointment basis. तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल दोनों आप यूज करेंगे. ऑब्वियसली अगर जिसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा ग्रीसी और स्टिकी रहेंगे. तो हम यहाँ पे इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट यूज करते हैं. दैट इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इमल्सिफाइंग वैक्स, और ये जो इमल्सिफाइंग वैक्स है ये बनता है सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन के कॉम्बिनेशन से. इसका एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन जब ऐड करते हैं तो हमारा बनता है इमल्सिफाइंग वैक्स. उस इमल्सिफाइंग वैक्स में जब हम व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है ये इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट. Then next is water soluble bases. They are commonly known as greasyless ointment. ये कंपैरेटिवली जो दूसरे बेस थे उन सबसे कम ग्रीसीनेस होती है इसमें, और इसके एग्जांपल है कार्बोवैक्सेस. कार्बोवैक्सेस में polyethylene glycol that is in market that are available in the name of PEG, or they are based on their molecular weight. ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर वेट, कि इनके जो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट करते हैं. मॉलिक्यूलर वेट इज 2002 और 6000. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है पीजी की कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है इसकी. दैट ये जो कंसिस्टेंसी है ये लिक्विड नियर अबाउट बिल्कुल लिक्विड हो जाती है. तो डिपेंड कि आपको कौन सा कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पीजी का सिलेक्शन करते हैं, यानी कार्बोवैक्सेस का हम सिलेक्शन करते हैं. Then next comes to cream. Creams are viscous semi-solid emulsions. That creams are known as semi-solid emulsion, और cream में भी oil in water type cream और water in oil type cream. दो तरह की cream होती है, oil in water cream and water in oil cream. They are meant for external use only. Cream are divided into two categories, aqueous cream और oily creams. तो aqueous cream मतलब oil in water और oily creams are water in oil. In case of aqueous creams, the emulsion are oil and water type, and it is relatively non-greasy. The emulsifying wax are anionic, cationic, or non-ionic used. Generally, polysorbates, triethylamine soap are used as a emulsifying agents. जैसे कि हम वहाँ पे emulsion में हम add कर रहे थे emulsifying agents, तो ऐसे ही हम यहाँ पे emulsifying agents हम ऐड कर रहे थे. तो यहाँ पे हम लोग क्रीम को प्रिपेयर करने के जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हैं दैट शुड बी पॉलीसॉर्बेट्स और ट्राइथ्लोनामाइन. तो ट्राइथ्लोनामाइन इज यूज एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट. और इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप इट इज रिलेटिवली ग्रीसी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंटिन्यूस फेस है वो ऑयल है. द इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर वूल फैट, वूल एल्कोहल्स, बीजवैक्स एंड कैल्शियम सोप्स. कैल्शियम सोप्स का मतलब यहाँ पे हम लोग दूसरे से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट. देन द क्रीम शुड बी स्टोर इन कोलैप्सिबल ट्यूब एंड सप्लाइड इन वेल क्लोज कंटेनर टू प्रिवेंट इवेपोरेशन एंड कंटेमिनेशन. ओके, देन इसके बारे में आपको और बता दूं थोड़ा सा क्रीम्स के बारे में, कि जो क्रीम है यहाँ पे हमने बात की ऑयल एंड वाटर की और वाटर एंड ऑयल की. तो अगर हम सपोज
मैं ऑयल एंड वाटर बना रही हूँ क्रीम, तो ऑब्वियसली मेरा वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेस है, तो वाटर ज़्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बीज वैक्स, तो बीज वैक्स मैंने सपोज उसमें ऐड किया है 5 ग्राम्स, और KOH ऑब्वियसली सपोज 10 ग्राम, ट्राइथ्लोनामाइन सपोज 5 ग्राम्स। तो अब ये हो गया 5, 10, 5, 20 ग्राम्स टोटल। तो बाकी बचा हुआ जो होगा वो 80 ग्राम्स वो हमारा वाटर होगा। तो आपको क्या करना है, ये बीज वैक्स की सॉल्युबिलिटी ऑयल में होती है, तो इसको आप अलग रखेंगे। KOH एंड ट्राइथ्लोमाइन आर सॉल्युबल इन वाटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाटर लूंगी मैं, उस वाटर में मैं ऐड करूंगी KOH एंड ट्राइथ्लोमाइन, और एक तरफ हम ऐड करेंगे बीज वैक्स। ओके, तो यहाँ पे जो बीज वैक्स है और ट्राई वाटर है, इन दोनों को मैं अलग अलग बीकर में ऐड करूंगी। इसको 70 डिग्रीज तक मैं हीट करना है मुझे, इसको भी 70 डिग्रीज तक हीट करना है। जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तब मुझे ऐड करना है, जैसे सपोज ये मेरा 2 फेस है बीकर में, एक में है मेरा एक्वस फेस और ये है मेरा ऑयल फेस। दोनों का टेम्परेचर मैंने नोट किया, तो दोनों का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब मैं क्या करूंगी कि एक पेट्री डिश लेंगे या चाइना डिश लेंगे, हम एक चाइना डिश, उस चाइना डिश में मैं इस ऑयल को ऐड कर दूंगी, ठीक है। और अगर मेरा कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी सॉल्युबिलिटी ऑयल में होती है तो वो भी मैं इसमें ही ऐड करूंगी। देन अब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ विद कंटिन्यूअस स्टीयरिंग, और इसमें कंटिन्यूअस स्टीयरिंग करते करते मुझे इसको ऐड करना है। अदरवाइज जो इमल्शन है अगर मैं उसको कंटिन्यूअस ऐड नहीं कर, मतलब कंटिन्यूअस स्टीयर नहीं करती है, टेम्परेचर वेरिएट होता है, तो यहाँ पे फेस सेपरेशन हो जाता है, ऑयल ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर वाटर अलग हो जाएगा, तो मेरा ये क्रीम का फेस सेपरेशन हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रीम। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल मैंने आपको बताया कि हम लोग क्रीम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। दैट अगर यहाँ पे मेरा कंपाउंड सपोज ये मेरी ऑयल इन वाटर टाइप है, अगर 80 ग्राम्स ऑयल होता और 20 ग्राम्स वाटर एक्वस कंटेंट होता, तो ये मेरी क्रीम होती वाटर इन ऑल टाइप। मेनली जो हम लोग क्रीम्स यूज करते हैं और मार्केट में जो अवेलेबल क्रीम्स होती हैं, दे ऑल आर ऑयल इन वाटर टाइप क्रीम्स। देन कम्स टू द पेस्ट। अगर मैं एक इन जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो जो इमल्शंस होते हैं, दैट इमल्शंस को अगर मैं थिक कर दूं, सॉलिड कर दूं, इमल्शंस को थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ा दूं, तो उनको हम बोलते हैं क्रीम्स। और अगर मैं सस्पेंशन को, मतलब सॉलिड सस्पेंशन को अगर मैं थिक कर दूं, तो वो हो जाते हैं पेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सॉलिड कंटेंट बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो हमारे पेस्ट के जो बेस हैं, पेस्ट बेसिस के अंदर मैं क्या करती हूँ, सॉलिड कंटेंट को डिस्पर्स करती हूँ या मिक्स करती हूँ। यहाँ पे हमारे सॉलिड कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। द पेस्ट आर जनरली वेरी थिक एंड स्टिफ, थोड़ा चिपचिपे भी होते हैं। They do not melt at ordinary temperature and thus form a protective coating over the area where they are applied. Pastes are differ from ointment as they contain high proportion of finely powdered medicament. जो मैंने आपको बताया कि they contain solid amount, यहाँ पे जो कंपाउंड है सॉलिड जो प्रोपोर्शन वो काफी ज्यादा होता है। They are mainly used as antiseptic, protective and soothing dressing. Paste should be stored and supplied in a container and made of material which do not allow absorption or diffusion to the कंटेंट। तो उसमें जो मटेरियल, जो हमारे कंटेनर्स हैं, वो कंटेनर ऐसे बने होने चाहिए कि वो हमारे मेडिकमेंट के साथ में, यानी कि जो हमारे पेस्ट हैं, जो हमारे सॉलिड मटेरियल हैं, वो उसके साथ रिएक्ट ना करें। तो दैट मीन्स कि एडिटिव्स, ड्रग are compatible with containers। अब वो कंटेनर कुछ भी हो सकता है, वो ट्यूब भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का कंटेनर भी हो सकता है, दैट आर इवन उसका जो ऊपर कैप है, कंटेनर एंड क्लोजर्स, दे आर कंपैटिबल विद कंटेनर्स एंड क्लोजर्स।
Then next dosage form is jellies. Jellies are transparent and translucent, non-greasy, semi-solid preparations, mainly used for external application to the skin. They are also used as the lubricating catheters, surgical gloves and rectal thermometer. तो ये हम एज अ लुब्रिकेशन के लिए भी यूज करते हैं. अगर आपको याद हो या आपने कभी देखा हो, जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए अगर हम जा रहे हैं, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो वो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं और उस नॉब को उस पर्टिकुलर एरिया पे जब मूव करते हैं तो वो कुछ जेली लगाते हैं. तो जेली इज की वो बीच में लुब्रिकेशन का काम करता है. तो यहाँ पे हम कैथेटर्स या सर्जिकल ग्लव्स या इंस्ट्रूमेंट को जो हमें स्किन के ऊपर मूव करना है, जिससे हमें रीडिंग लेनी है, तो उसकी स्मूथनेस को अच्छे से स्लाइड करने के लिए भी वहां पे हम जेलीज ऐड करते हैं. तो द सब्सटेंस लाइक जिलेटिन, स्टार्च, ट्रागन, सोडियम एल्जिनेट, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ जेलीज. यहाँ पे हमने सारी चीजें वो यूज की है जो पानी के साथ जेल फॉर्म करते हैं. तो ये सब चीजें पानी के साथ एक स्टिकी मास प्रिपेयर करता है. Jellies are of 3 types: medicated jellies, lubricating jellies and miscellaneous jellies. So medicated jellies means they contain some API or medicament, और lubricating jellies में कोई medicament नहीं होता है, और normally वो सिर्फ catheter, surgical gloves, वो सिर्फ as a lubricating agent की तरह काम करते हैं. Miscellaneous jellies other than these are comes to the miscellaneous category. तो ये था हमारा solid dosage form में solid, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया. नाउ कम्स टू द न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम. तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आता है कि जिसको हम ना तो सॉलिड की कैटेगरी में रख रहे हैं, ना लिक्विड की कैटेगरी में रख रहे हैं, ना सेमी सॉलिड की कैटेगरी में रख रहे हैं, बट दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, या हमने सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, ऐसा ना करके वैसा, और वो थोड़ा चेंज हो गया है, तो वो हमने लिया है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में. तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, दीज आर द एडवांसमेंट इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस. दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट that have various modern dosage forms. There are different method of administration and different routes. Some of the modern dosage forms are implants, films and strips, liposomes, controlled drug delivery modules, erythrocytes, nanoparticles, prodrugs. ये आपके लिए टर्म्स थोड़े से नए हैं, मैं तो इनको थोड़ा थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही हूँ. व्हाट आर इम्प्लांट्स, व्हाट आर फिल्म स्ट्रिप्स. तो नेक्स्ट कम्स टू इम्प्लांट्स. इम्प्लांट्स क्या होते हैं, जब जो स्किन के नीचे हम माइनर सर्जरी करके उसको इम्प्लांट किया जाता है, और वो धीरे धीरे अपना ड्रग जो है वहां पर रिलीज करता है. या तो माइनर सर्जरी की जाती है, या फिर पर्टिकुलर इंजेक्टर्स के थ्रू हम उसको, या हाइपोडर्मिक जो टैबलेट्स हैं उनको हाइपोडर्मिक निडल्स के थ्रू हम स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं. तो वो क्या होता है कि वो स्किन के नीचे थोड़ी देर तक रहते हैं, वहां पे अपना ड्रग रिलीज करते हैं, और वो वहां पे उसके साथ डिसॉल्व हो जाता है. और कई बार ऐसा होता है कि इन इम्प्लांट्स को अगर आपने इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ऐड नहीं किए हैं, या उसमें पॉलीमर ऐसे हैं जो बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको कई बार वहां से हमें सर्जरी करके फिर निकालना भी पड़ता है. नॉर्मली इम्प्लांट्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स से ही बनते हैं. So that implants are the hydrodermic tablets are placed under the skin by a minor surgery in order to release the drug over a prolonged period of time. Normally implants पे आजकल जो चल रहे हैं वो दो हैं, एक एंटीडायबिटिक ड्रग भी हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स. जो आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ये एज ए इम्प्लांट्स की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में. और नाउ magnetically controlled implants have been developed which can be open or closed at will be in order to release or stop the drug. These implants are placed at upper thigh at the depth of 5 mm. These implants are useful in hormone therapy. और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिकली कंट्रोल क्या है कि आपने इसको इम्प्लांट कर दिया है, बट ये अपना ड्रग रिलीज नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि आप उसमें आपने कुछ मैग्नेटिक बेल्ट पहन लिया है, या आप कुछ मैग्नेटिक एरिया में चले गए हैं, तो वहां पे वो उसको ट्रिगर करता है, बिकॉज ऑफ उसमें मैग्नेट फिट है, तो वो अपना ड्रग वहां पर रिलीज करता है. तो ये नोवल डिलीवरी सिस्टम है, ये एडवांस डिलीवरी सिस्टम्स हैं.
देन कम्स टू फिल्म्स एंड स्ट्रिप्स, तो बकल स्ट्रिप्स एंड स्प्रे बैंडेजेस। स्प्रे बैंडेजेस में जो आजकल आप लोगों ने नॉर्मली यूज करते हैं बैंडेड, तो बैंडेड में अगर आप नीचे देखें तो उसमें बैंडेड इज अ ब्रांड, मतलब बैंडेड हम उसको, वो नॉर्मल बैंडेजेस हैं लेकिन वो बैंड एड इज अ ब्रांड, तो वो उसका नाम नाम से हम उसको बैंडेड बोल रहे हैं, बट बैंडेड उसका नाम है, दैट इज अ ट्रेडमार्क, लेकिन उस डोसेज फॉर्म को हम बैंडेज बोलते हैं। देन ये जो बैंडेजेस हैं बकल स्ट्रिप्स, यानी कि जो स्ट्रिप्स आती है उनको हम अपने बकल में अपने मुंह में चिपका देते हैं और वहां पे वो ड्रग अपना धीरे धीरे रिलीज करता रहता है। नॉर्मली एंजाइना पेक्टोरिस के लिए बकल स्ट्रिप्स अवेलेबल है मार्केट में। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, उस वो जो है हार्ट प्रॉब्लम के लिए एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट डिजीज में दिया जाता है, मतलब हार्ट डिजीज से रिलेटेड जो डिजीज है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। और नाइट्रोग्लिसरीन जो है अगर हम उसको ओरली देते हैं तो वो स्टमक में जाके डिग्रेड हो जाता है, तो उसको या तो सबलिंगुअली दिया जाता है या उसको बकल स्ट्रिप्स की फॉर्म में दिया जाता है। देन स्प्रे बैंडेजेस की स्प्रे हम लोग करते हैं और वो एक ड्राई होने के बाद वो वहाँ पे बैंडेज की फॉर्म ले लेता है। और जो हमने बैंडेड की बात की तो वो जो स्टिकी स्ट्रिप्स आते हैं, जो वो स्ट्रिप्स भी यहाँ पे फिल्म्स एंड स्ट्रिप्स की फॉर्म में हम उसको यहाँ पे लेते हैं। और ये सब के सब जो है वो म्यूकस या टॉपिकल यूज के लिए ही है, फिल्म्स एंड स्ट्रिप्स। देन बकल स्ट्रिप्स को जो मैंने अभी बताया तो वो बकल स्ट्रिप्स था जिसमें फैब्रिक और फिल्टर पेपर कॉटन ये यूज करते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल स्ट्रिप्स यूज की जाती हैं। देन स्प्रे बैंडेजेस, स्प्रे बैंडेजेस में जो मैंने आपको बताया कि हम लोग जो बैंडेज यूज करते हैं उसको स्प्रे करते हैं और वो वहां पर स्प्रे करने के बाद वो एक फिल्म जैसा बना देता है और वो हमें लगता है कि ये एक वहां पे बैंडेज का काम कर रहा है। देन नेक्स्ट कम्स टू लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स क्या है, दीज आर द कैरियर्स कि यहाँ पे लाइपोसोम्स के अंदर हम अपने ड्रग को इंकॉर्पोरेट कर देते हैं, जो हम थ्रू इंजेक्टेबल्स हम उसको बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लाइपोसोम्स हैं दे आर नॉर्मली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और ये फॉस्फोलिपिड से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है, प्रोटीन से बनता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो क्या है कि और जो बॉडी में अवेलेबल है तो बॉडी में जाके ये ऑटोमेटिकली बॉडी में डिग्रेड हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है लाइपोसोम्स को। और दे हैव बोथ प्रॉपर्टी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, तो इसमें हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ड्रग दोनों ही हम इसमें दे सकते हैं, दोनों के लिए एज ए कैरियर की तरह काम करता है। और जो लाइपोसोम्स हैं वो एज पर कि वो उसमें कितने टाइप की लेयर बन रही हैं या वो कितना बड़ा छोटा है उसके अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी है मल्टी लेमिनार वेसिकल्स, second one is small unilaminar vesicles and third one is large unilaminar vesicle। यूनि मतलब उस पे सिंगल लेयर बन रही है, तो अगर वो छोटा है सिंगल लेयर है तो स्मॉल यूनिलेमिनार, लेकिन वो बड़ा है और सिंगल लेयर है तो वो लार्ज यूनिलेमिनार, लेकिन अगर वो बड़ा है और उस पे बहुत सारी लेयर्स हैं तो दैट लार्ज मल्टी लेमिनार वेसिकल्स। देन ये जो लाइपोसोम्स हैं ये मार्केट में जो अवेलेबल कौन कौन से अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो जो पैरासाइटिक ड्रग्स हैं जैसे कि इसमें यूज की जाती है, फॉर एग्जांपल फॉर मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, एमेबियासिस, इट एंट्रैप इंसुलिन in active orally that can be replaced by intramuscular injection of insulin। आरएनए डीएनए को मॉलिक्यूल्स को अगर आपको बॉडी में देना है तो भी आप लाइपोसोम्स के थ्रू हम दे सकते हैं। फिर जो रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं या इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जो हम बोलते हैं ना वैक्सीन, सीराज, उनको भी हम लाइपोसोम की फॉर्म में दे सकते हैं। देन जो एंटी कैंसर ड्रग है, न्यूरोप्लेसिया है, उसमें भी इन ड्रग्स का यूज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम कि मुझे अपने ड्रग को कितना, कब, कैसे, कहाँ रिलीज करना है, और उनको हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो एक मॉड्यूल है डिफ्यूजन, दूसरा मॉड्यूल है ऑस्मोसिस और तीसरा मॉड्यूल है बाय केमिकल रिएक्शन, और दैट शुड बी implanted by subcutaneously or inserted into the body cavities। Then comes to erythrocytes। इन erythrocytes का दूसरा नाम हम बोलते हैं रीसील्ड erythrocytes। तो रीसील्ड erythrocytes, तो रीसील्ड erythrocytes क्या है कि जो
ब्लड होता है, उस ब्लड में से हम एरिथ्रोसाइट्स को यानी कि आरबीसीज को अलग कर लेते हैं, और आरबीसीज को अलग करने के बाद हम उसमें अपने ड्रग को पेनिट्रेट करते हैं, या उस ड्रग को उसके अंदर हम किसी भी तरह फोर्सफुली उसके अंदर डालते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि अगर आपने किशमिश देखा है तो किशमिश और अंगूर दोनों सेम ही है। अगर मैं अंगूर को किसी शहद में डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किशमिश को पानी में डाल दूं तो वो स्वेल हो जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ वही वाला फिनोमिना है कि अगर मैं उसकी टोनिसिटी को चेंज करती हूँ तो ये एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, या श्रिंक होते हैं, या स्वेल होते हैं। तो उसके पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और उसके अंदर अपने ड्रग को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो और जब हमारा ड्रग उस पर इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो इन एरिथ्रोसाइट्स को हम इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड में, तो विद द हेल्प ऑफ सेलाइन। तो ये इजीली पूरे ब्लड में मूव करता है और पर्टिकुलर एरिया को आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी, और इसका लाइफ स्पैन जो है वो अप्रोक्सीमेटली एरिथ्रोसाइट्स का 120 डेज होता है। तो बॉडी में ये अप्रोक्सीमेटली इतने डेज तक ये ड्रग जो भी ड्रग आपने उसमें दिया है वो ड्रग आप उसमें डाल सकते हैं। इनका पूरा चैप्टर आप 7th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में जाके पूरा कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम का एक पूरा सब्जेक्ट है आपका। देन एप्लीकेशंस ऑफ रीसिल्थ्रोसाइट्स। Resilthrosites are used in kidney failures, used in leukemia, used in cancer therapy, and it is used as an anti-inflammatory action. Then comes to nanoparticles, जो ड्रग होते हैं छोटे होते हैं तब वहां पे उनको भी यूज किया जाता है। Then तो this is the end of dosage form.